So good morning class. So today we are going to start with a new topic, that is prepositions. So I think you people are aware of what prepositions are, and you know that we use prepositions in our daily life like in, on, under, at. But so today I am just going to give you a thorough of what is the meaning of this prepositions and what are the various types of prepositions. So this word preposition, it has been basically combined with two words, that is, it's made up of two words, that is pre and position. So pre means pehle, okay, before, previous, and position means place, okay, place. So a preposition is basically a word that is used before a noun or a pronoun, and it links a noun or a pronoun with other parts of speech. Okay, now let's understand this definition with the help of an example. Suppose if I say I am in the class. Okay, so here what is your noun or a pronoun? It is I. I is your pronoun, correct? And what is preposition in this sentence? In. In is your preposition. And what is the class? The class is your object, or you can say noun. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि preposition क्या होती है. A preposition basically it forms a relationship या फिर it links a noun or a pronoun with other parts of speech in a sentence. तो जैसे इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर pronoun और जो other part of sentence है, मतलब कि the class, मतलब जो object है noun है, तो उसके बीच में relation किसने बताया? In ने बताया. So in is the preposition over here. तो अब हम जब prepositions को divide करते हैं, तो prepositions को हम लोग 3 categories में divide करते हैं. That is preposition of time, preposition of time, preposition of place and preposition of direction. ठीक है, तीन टाइप के prepositions होते हैं, and we have divided it according to that. That is preposition of time, preposition of place and preposition of direction. So today we are going to study, first topic is our, जो हमारा first division है, that is preposition of time. तो preposition of time के basis पे हमने division करा है. जो हमारा first preposition है, that is in. तब हम ये देखेंगे कि in जो होता है वो बेसिकली हम उसको कहाँ पर यूज करते हैं. Where do we use in? ठीक है, तो जो in होता है उसका हम लोग यूज करते हैं in months. जब हम किसी month की बात करें, suppose if I talk about any month, suppose if I say that I was born in March, तो यहाँ पर आपने ये चीज देखी, जैसे I was born in March. ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने मंथ को डिस्क्राइब करा तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लगाई? इन. आई वॉज बॉर्न इन मार्च. या फिर अगर मैं बोलूं सीजन्स की बात करें, जैसे मैं बोलूं इट बिकम्स या इट इज यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे विंटर्स हमारा सीजन है, तो हमने यहाँ पर जब सीजन की बात करी तो हमने क्या लगाया? इन. ठीक है, या फिर जब हम बात करें if we talk about any year, ठीक है, if we talk about any year, suppose if I say that he was born in 2002. अब हम बोल रहे हैं कि वो 2002 में पैदा हुआ था, तो अब यहाँ पे जब ईयर की बात करें तो भी हम यहाँ पर इन लगा रहे हैं, करेक्ट. या फिर जब हम बात करें जब सेंचुरीज की, जैसे कि इफ आई से दैट एरोप्लेन वाज डिस्कवर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, तो यहाँ पर हम सेंचुरीज की बात कर रहे हैं. ओके, तो जब हम कभी भी मंथ्स की बात करें, सीजन्स की बात करें, ईयर की बात करें, या फिर हम बात करें सेंचुरीज की, देन इन दोज केसेस वी ऑलवेज पुट इन. ठीक है, जैसे I was born in March, it is usually very cold in winters, या he was born in 2002. तो यहाँ पर just you can see कि जब भी हम months की बात करें, seasons की बात करें, या किसी year की बात करें in particular, okay, जैसे he was born in
2017. Okay, so in those cases you will put, जैसे months की बात करें, जैसे I was born in June या I was born in October, तो there we always put in. अब हमारा जो second usage है that is our second usage is of on. अब हम बात करेंगे किसकी? We will talk about on. on हम कहाँ लगाते हैं? अच्छा, on हम लोग लगाते हैं जब हम लोग कभी किसी डेज की बात करें या फिर किसी डेट्स की बात करें तो वहां पर हम लोग on लगाते हैं. जैसे सपोज इफ आई से he met me on Tuesday, तो यहां पर हम डे की बात करें दैट इज ट्यूसडे, तो यहां पर हमने क्या लगाया? on लगाया. या जब हम किसी डेज की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डेज या फिर डेट्स, कोई स्पेशल डेट, जैसे सपोज इफ आई से ही मेट मी ऑन 6th of June, ही मेट मी ऑन 6th of June. तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि जब मैंने कभी कुछ स्पेशल डेज की बात करी, जैसे ही मेट मी ऑन ट्यूसडे, ही मेट मी ऑन वेंसडे, तब हम ऑन लगाते हैं. या फिर जब कोई डेट की बात करते हैं, स्पेसिफिक हमने कोई डेट दे दी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी पुट लाइक दिस. जैसे कि इफ आई से दैट रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेज एंड डेट्स वी पुट ऑन. ठीक है, फिर आती है बात थर्ड नंबर वाले की, एट. ठीक है, तो एट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई क्लॉक टाइम की बात होती है. क्लॉक टाइम इन द सेंस जब जिसमें आपको प्रॉपर एक टाइम मेंशन्ड हो, जैसे कि क्लॉक टाइम इन द सेंस सपोज इफ आई से ही मेट मी एट 5 o'clock. ठीक है, ही मेट मी एट 5 o'clock. तो मैंने एकदम एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि वो मुझसे 5 बजे मिला. ठीक है, तो प्रिसाइज टाइम एकदम जब बता दो, क्लॉक टाइम बता दो, 5 की जगह यहाँ पे होता है 3 o'clock, तभी हम यहाँ पर एट लगाते. ठीक है, तो जब हमें कोई क्लॉक टाइम बता दिया जाता है कि ही मेट मी एट 10 o'clock या ही मेट मी एट 3 o'clock, then there we put, what do we put? We put at. Okay, and suppose अगर हमें कभी कोई स्पेशल ओकेजन की बात करी जाए तो वहां पर हम लोग एट लगाते हैं. जैसे सपोज इफ आई से not for the special occasions, we don't put for special occasions. जैसे कि कोई फेस्टिवल की बात करी जाए, not special occasion, sorry, when we talk about festivals, suppose कोई भी पर्टिकुलर फेस्टिवल की बात करें, जैसे कि he met me at Christmas, वो मुझसे क्रिसमस पे मिला, so he met me at Christmas. So here we are talking about a particular festival. He met me at Diwali, he met me at Holi. तो जब कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल की बात हो गई तो वहां पर भी हमने एट लगा दिया. बट फॉर सम स्पेशल जब डेज और डेट्स मेंशन हो जाते हैं तो देयर वी पुट ऑन. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूजेज, सिंस एंड फॉर का. ठीक है, सिंस एंड फॉर. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट फॉर, कि फॉर का यूज हम कहां पर करते हैं. सी, फॉर इज ऑलवेज यूज्ड, देखो दोनों का यूजेज एक ही चीज के लिए होता है, दैट इज अबाउट टेलिंग अबाउट द टाइम. जब हम टाइम के बारे में बताते हैं देन तब उसी के समय हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम. बट फॉर जब यूज होता है तो दैट इज वेरी प्रिसाइज अबाउट टाइम. मतलब उसमें क्या होता है, हम टाइम के बारे में मतलब हम सब बता देते हैं, अबाउट द डेज, अबाउट द आवर्स, ठीक है, अबाउट द मिनट्स, अबाउट द सेकेंड्स. ठीक है, मतलब जब हम फॉर की बात करते हैं तो उसमें हमें सेंटेंस में पता होता है कि जो भी हमारा एक्शन हुआ है वो कौन से मंथ में हुआ है, कौन से डे में हुआ है, कौन सी मतलब आवर्स में हुआ है, सब पता होता है. जैसे सपोज इफ आई से द गर्ल्स वर चैटिंग फॉर 2 hours, the girls were chatting for 2 hours. तो इसमें हमने क्या लगाया, फॉर लगाया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक टाइम पता था.
ठीक है, तो फॉर में क्या होता है, हम ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, वी टॉक इन मोर डिटेल, कि जो भी एक्शन हो रहा है वो मतलब क्या कहते हैं, कितना कौन से मंथ में हुआ, कौन से टाइम में हुआ, मतलब ये पूरा डिटेल रखता है। जो फॉर होता है, इट कीप्स ऑल द डिटेल अबाउट दैट व्हेन द एक्शन हैज हैपेंड, इन व्हिच मंथ, in which hour, how many hours it took to happen, how many minutes, how many seconds, okay, तो ये होता है इसमें, मतलब हमें एक पूरा प्रॉपर डिटेलिंग होती है। या सपोज इफ आई से दैट he has been living in Canada dash 3 days, dash 3 days। अब 3 days मतलब हमने यहाँ पे डेज भी बता दिए कि वो इतने दिन तक कनाडा में था, तो यहाँ पे हम टाइम को लेके बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है, हमने पूरा दिन बता दिया, आवर्स बता दिया, सब बता दिया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, ठीक है। और सिंस का क्या होता है, सिंस में हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, हम आवर्स या डेज या मिनट्स या सेकेंड्स, मंथ्स, ये सब नहीं बताते हैं, हम सिंपल बता देते हैं कि वो एक्शन इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस मंथ में हुआ था या फिर इस डे पर हुआ था, बट अब हमें नहीं पता कि उस टाइम पर क्या है। सो बेसिकली सिंस में क्या होता है, जैसे कि सपोज इफ आई से ही, या अगर मैं बोलूं, हाँ, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, मीन्स ये जो एक्शन है, तो यहाँ पर बेसिकली आंसर आएगा सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों आएगा, उसका रीजन ये है, योर सिंस मॉर्निंग इसलिए आएगा क्योंकि हमें नहीं पता एक्शन कब जाके खत्म हो रहा है, हमने कुछ स्पेसिफिक उसका टाइम नहीं बताया कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस 3 आवर्स या 2 आवर्स या सिंस 1 डे, ये सब नहीं हमने बताया, हमने सिर्फ बताया मॉर्निंग से बारिश हो रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, हमें आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, ओके। और जहां पे हमें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, देयर वी पुट फॉर, पर जहां पे हमें बस ये पता होता है कि हाँ एक्शन स्टार्ट हुआ था कभी, तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। जैसे अगर हम बोले ही हैज बीन लिविंग इन कनाडा डैश 2009, तो 2009 से वो रह रहा है, हमें एक पर्टिकुलर बता दिया कि तब से वो रह रहा है, अब हमें नहीं पता कि मतलब कितने आवर्स हो गए, कितने मिनट्स हो गए, कितना मंथ हो गया, ये सब हमें नहीं पता, हम सब बस हमने पहले की बात कर दी 2009, तो हमने वहां पे सिंस लगाएंगे, दैट ही हैज बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 2009। सो मतलब फॉर में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं, एंड इन सिंस में वी कीप इट वेरी नॉर्मल, वी डोंट गो टू मच ऑफ द डिटेलिंग्स, बट वी ओनली टॉक अबाउट कि कब वो एक्शन स्टार्ट हो चुका था पास्ट में, अब हमें प्रेजेंट में नहीं पता दैट व्हाट इज हैपनिंग, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हम इनका यूज करते हैं। देन देयर आर सम मोर प्रेपोजिशंस इन दिस प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट is your next is your until, okay। नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है until, कि until का यूज हम कहां पर करते हैं। सी until का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन हमारा बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, मतलब वो एक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है बहुत पहले से, वो हो रहा है, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक्शन रुक गया, then there we use until। Suppose if I say that he did not suppose if I say he did not wake up until noon, ठीक है, मतलब वो सुबह से सो रहा था, सुबह से वो एक्शन हो रहा था और नून तक भी वो एक्शन हुआ है, अब वो पता नहीं कब खत्म होगा, बट नून तक भी वो एक्शन चल रहा था। सो अंटिल का यूज हम तब करते हैं व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग एंड इट इज गोइंग ऑन एंड इट्स गोइंग टू एंड एट लाइक आई डोंट नो एट व्हाट टाइम इट्स गोइंग टू एंड। सो देयर वी यूज अंटिल, ओके, मींस ही डिड नॉट वेक अप अंटिल नून, मतलब नून में जाकर वो कभी उठा होगा, बट सुबह से ही वाज स्लीपिंग, सो दैट एक्शन वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग आवर्स, बट टिल नून इट हैपेंड, ओके, there we use until। और एक हमारा preposition होता है, what is that preposition? yes, by का यूजेज कब होता है, आपने देखा होगा कई बार ये यूज होता है, ये वाला preposition by, तो इसका यूज ये होता है कि वो एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, बट इन फ्यूचर
at a certain point of time वो होगा at a specific time, means it has not started but it is going to happen at a precise time in future. Suppose if I say complete, या फिर मैं बोलूं कि submit your assignment by tomorrow, means that action that it has not started but in future at certain point of time you have to do that. So there we put by. ठीक है. And preposition of time में एक और होता है हमारा, that is during also you must have heard a lot of times. तो during हम लोग तब लगाते हैं जब कोई action हो रहा होता है, in the middle of that, during that. Suppose if I say that he fell asleep during the match, मतलब वो एक्शन हो रहा था और उस एक्शन के दौरान he fell asleep. Okay, so during that action only when मतलब वो एक्शन चलते चलते जब कोई कुछ हो जाए, so there we put this preposition that is during. तो हमारे preposition of time में हमने काफी सारे prepositions कवर करे. सबसे पहला हमने कवर करा in, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं सीजन्स के लिए या फिर मंथ्स के लिए या फिर हम लोग ईयर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे इन 2016, इन 2017. फिर हमने ऑन का यूज देखा, तो ऑन का हमने ये देखा कि वो डेज और डेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है. फिर एट का देखा, जब कोई क्लॉक टाइम दे दिया जाए एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, तब हम यूज करते हैं. और हमने देखा कि एट का यूज हम कुछ फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं, जैसे वी यूजुअली मीट एट क्रिसमस, ही मेट मी एट दिवाली, ही विल मीट मी एट होली, तब कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स के लिए कर लिया. फिर हमने देखा सिंस और फॉर का. तो फॉर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम जाते हैं, जब हम आवर्स, मंथ्स और मतलब पूरा मिनट्स सब कुछ कैलकुलेट करके बता देते हैं. द गर्ल्स हैव बीन चैटिंग फॉर 3 hours, ही हैज बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर 3 days, ठीक है. तो जब हम डेज, ईयर्स, सब मतलब बहुत डिटेल में जाएं तब हम फॉर लगाते हैं. और सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, बस हमें ये पता है कि एक्शन इन वे पास्ट स्टार्ट हुआ था बट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग, मीन्स वी आर नॉट गोइंग इन अ वेरी डिटेल. जैसे मैं बोलूँ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने ये नहीं बताया कि मतलब कितने घंटे बारिश हुई या कब तक हुई, कब तक चलती रही, but I only told that it has been raining since morning से हो रही है ना, अभी तक हो रही. So I have not gone into much detailing, so they will put since. Then I told you about until में मैंने आपको बताया जब कोई एक्शन बहुत देर से चल रहा है, हो सकता है कि at an precise time it's going to end, तो वहां पे हम until लगाते हैं. और बाय का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है बट वी आर श्योर कि फ्यूचर में ये कभी होगा, इट विल हैपन इन समवट वेज फ्यूचर में. और बाय का यूज हम तब भी करते हैं जब हम कोई मीन्स ऑफ मीडियम बताते हैं किसी चीज का. जैसे अगर मुझे चिट्ठी पोस्ट करनी है, ठीक है, अब मुझे चिट्ठी पोस्ट करनी है थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो मैं बोलूंगी दैट आई विल पोस्ट माई लेटर बाय पोस्ट ऑफिस. तो तब वहां जैसे कोई मीन्स बताएं, ठीक है, that he is going to go to Canada by aeroplane. जब हम कोई means बताते हैं किसी चीज का mode of या means of anything, how it's going to happen, तो तब हम वहाँ पे by लगाते हैं. And during का use हम तब करते हैं जब कोई काम action हो रहा हो और उसी के दौरान कोई चीज हो जाए, so there we use during. So these are all your prepositions of time.